ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام دعا اور دوا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ دعا اور دوا ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ دعاؤں سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، کس وقت کون سی دعا مانگنا چاہیے، دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اپنی قسمت کا لکھا کر آتا ہے، لیکن دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے جو انسان کا لکھا ہوا بدل سکتے ہیں۔ اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے اور آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دی جائیں گے۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے لکھنؤ کی اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مولانا ہارون نظامی صاحب۔ مولانا صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور ناظرین آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے ہوئے نمبرات پر کال کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے بات کریں، گفتگو کریں، اپنا سوال پوچھیں، اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، میں چاہوں گا پروگرام کے حوالے سے دعاؤں کے متعلق آپ جو ہے تمہیدی کلمات بیان فرمائیں۔ الحمد للہ وبہ نستعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب اسے کوئی پکارے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کوئی اللہ کو پکارتا ہے، اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ، مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے التجا کرو، میں خوش ہوتا ہوں۔ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ لوگوں سے کہیں گے، اس سے مانگیں گے تو ناراض ہوں گے کہ بار بار مانگتے ہیں، بار بار کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے کم مانگو گے تو میں ناراض ہوں گا، تم مجھ سے خوب مانگو۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس زمین اور آسمان کے تو خزانے ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہا مجھ سے خوب مانگو، صبح مانگو، دن میں مانگو، شام کو مانگو، سوتے وقت مانگو، رات میں مانگو، جس وقت بھی تم اللہ کو پکارو گے اللہ تمہیں لبیک کہہ کے جو ہے ملے گا۔ تو اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ بنایا ہے، اور آپ انبیاء علیہم الصلاۃ کو دیکھیں گے تو انبیاء علیہم الصلاۃ کے اوپر جب بھی حالات آئے، پریشانیاں آئیں، تو انہوں نے اللہ کے حضور میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے دعائیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کی برکت سے ان کو کامیابی نصیب کی، ان کے تمام مسائل کو اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا۔ آپ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بنائی گئی، کتنی بڑی مصیبت آئی، اور پھر اس آگ میں ڈالا جانا تھا آپ کو، یہاں تک کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اور جب آپ آگ کی طرف جا رہے ہیں، کتنی بڑی مصیبت ہے، وہ آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اس کی لپٹیں آسمان کے برابر تھیں، لیکن انہوں نے ایک دعا پڑھی، اور اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس آگ کو باغ بنا دیا، اس آگ کو گل گلزار بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا رہے ہیں، مصیبت پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک۔ حالانکہ فرشتے بھی آ گئے تھے، جبریل آ گئے، میکائیل آ گئے، بارش کا فرشتہ آ گیا، ہوا کا فرشتہ آ گیا، فرشتوں کی مدد کو بھی ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا حسبنا اللہ، میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ بات اور یہ ادا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کو اتنی پسند لگی
کہ اللہ نے کہا ہے کہ ابراہیم اب تمہاری مدد ہم جو ہے فرشتوں سے نہیں کریں گے، اب تمہاری مدد ہم پانی برسا کے نہیں کریں گے، جب تم نے دل میں مجھے پکارا تو اب ہم ڈائریکٹ براہ راست ہم آگ سے بات کریں گے۔ اور اللہ نے آگ سے بات کی، یا نہ رکونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونا، اتنی زیادہ بھی نہ ٹھنڈی ہونا کہ وہ آگ کے اندر ابراہیم کو ٹھنڈک لگنے لگے، سلامن علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونا، یہ دعا کی برکت ہے۔ جی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور 40 دن وہاں پہ رہے، یعنی جس مچھلی کے پیٹ میں یہ تھے اس مچھلی کو دوسری مچھلی نگل گئی تھی جی اور پھر سمندر کے بالکل نیچے تھے میں پہنچ گئے تھے، وہاں انہوں نے 40 مرتبہ پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، میں ظالم ہوں، میں نے ظالموں والا کام کیا۔ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تو اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ وہ مچھلی جہاں سے یونس علیہ السلام کو لے گئی تھی، کنارے لا کے یونس علیہ السلام کو اس نے اپنے پیٹ سے نکال دیا۔ یہ دعا کی برکت ہے کہ جب انہوں نے دعائیں اللہ سے کی تو دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ان کو نجات دیا۔ بس آخری بات میں اور بتا دوں، حضرت زکریہ علیہ السلام 120 سال کی عمر ہے جی اور ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، انہوں نے اللہ سے دعا کیا، یا اللہ مجھے ایک اولاد دے دے، اذ نادى ربه نداء خفیا، یا اللہ مجھے ایک اولاد دے دے۔ قرآن کہتا ہے ان کی بیوی جو ہے وہ وکانت امراتی عاقرہ، بانچ، جس سے اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ جب زکریہ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں اللہ کو پکارا تو اللہ نے کہا یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریہ تمہارے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ پتہ چلا کہ پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے رکھا، یا زکریہ اے زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، تمہارے یہاں بشارت ہوگی، ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حالانکہ زکریہ علیہ السلام نے کہا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے، اللہ آپ کیسے مجھے بیٹا دیں گے؟ اللہ نے کہا قال کذالک، ہم اپنی قدرت سے جو ہے دیں گے، جب زکریہ تم نے مجھ کو پکار لیا تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا طرز ہے، جب اللہ کے حضور میں انہوں نے اپنی پریشانیوں کو رکھا، اللہ کے سامنے دعاؤں کو رکھا تو دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ایسی مصیبتوں کو جو ہے اللہ نے جو ہے دور کر دیا، جو چیزیں ناممکن تھی اللہ نے ان کو ممکن کر دیا۔ بے شک، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب تمیدی کلمات کے لیے اور دعاؤں کے بارے میں بتانے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کاٹنا نہیں بولو پر میرا سننا، میرا بیٹے اس ٹائم میں تھا، ان کو ثواب بھی دیں گا تو میرا عزت ہے سر، میرا 2-3 سوال ہے سننا۔ جی جی سوال کیجئے۔ اصل میں نا میرا پاؤں میں ایک خراب طرح اندر زخم ہے، ماشاء اللہ الحمدللہ۔ میرے ایک بیٹی کے 5 لڑکے قرآن حافظ بھی ہے، یہ عالم بھی ہے، یہ میرا پوتا تو قرآن حافظ ہے تو بیٹے، اللہ کے حکم سے لوگوں کی دعا سے بھی میں اتنا چلتی ہوں۔ تو میرے لیے مولانا کو بولا میری بیٹی کوثر سینا ہے نا، وہ بھی بیچاری 13-14 عمرہ بھی کری، ابھی نہیں کر سکتے، اس کا پاؤں میں اتنا خراب درد ہے، اتنا خراب درد ہے بیچاری کہ میں عمرہ بھی 13-14 کری ہے، وہ بھی صبح میں پڑھتے رہتی ہے، اس کی کمر کی ہڈی اور کمر میں بہت پاؤں میں بہت خراب درد ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، اور مفتی صاحب سے آپ کے سوال کے جواب لے لیتے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ جی مولانا صاحب ان محترمہ کی کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟
سب سے پہلے تو میں بہن کو یہ بتاؤں گا کہ یہ اصلی زیتون لے لیں. جی اصلی زیتون. ان کے عمر کا تقاضا ہے، پیر میں بھی درد رہتی ہے، کمر میں بھی درد رہتا ہے، تو اصلی زیتون کے اوپر یہ قرآن مجید کی یہ دعا دم کر لے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. 41 مرتبہ اس دعا کو اصلی زیتون پہ دم کر لے اور وہی زیتون کا تیل ان کے کمر میں، پیروں میں، کہیں بھی تکلیف ہو رہی مالش کرے. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ان کو شفا دے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں سٹی پر سے بات کرتا ہوں، تلنگانہ سے. جی سوال پوچھیے. جمعے کے دن دعا پڑھنا اور غسل کرنا ضروری ہے کیا؟ جمعے کے دن جی اچھا. غسل کرنا اور دعا کیا پڑھنا چاہیے جمعے کے دن؟ جی اگر ناپاکی کی حالت ہو تو اس حالت میں پوچھنا چاہ رہا ہے نا کہ اگر ناپاک ہو تو غسل کرنا ضروری. جی بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار قرار دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی میں نے کافی تفصیل سے بات بتائی تھی کہ جمعے کے دن اگر پڑھنا ہے تو صرف درود شریف کا عمل ہے. جی جمعے کے دن آپ کو پڑھنا ہے تو خاص طور سے درود شریف پڑھیے، جمعے کا خاص عمل ہے. ایک چیز. دوسرے، جمعے کے دن سورہ کہف کی ضرور تلاوت کی جائے. جمعے کے دن سورہ کہف کی ضرور تلاوت کی جائے. اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اللہ کی بندی نے، اللہ کے بندے نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، آنے والے جمعے تک اگر چھپی ہوئی برائیوں میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے دجال کا آنا، دجال بھی اگر نکل آیا تو جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی اس کے اوپر اس کا اثر نہیں ہو سکتا. تو سورہ کہف کی ضرور تلاوت کی جائے. دوسرے، پورا ٹائم ہمیں درود شریف میں لگانا ہے جمعے کے دن. جہاں تک غسل کا تعلق ہے، اگر ناپاکی حالت میں تو ظاہر سی بات ہے ان کو نہانا تو ان کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، بغیر نہائے تو کوئی عبادت کر نہیں سکتے. اگر یہ پاک بھی ہیں تو جمعے کے دن نہانا سنت قرار دیا گیا ہے کہ یہ سنت والا عمل ہے کہ اگر جمعے کے دن کوئی دقت، پریشانی، کوئی بیماری ایسی نہ ہو تو جمعے کے دن نہانا بہتر ہے، سنت ہے. اگر نہا لیں گے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی. اور اگر بھائی پاک ہیں، صاف ہیں، اور اگر ان کو ٹھنڈک کی وجہ سے، کسی مصیبت کی وجہ سے نہ بھی نہائے تو نماز تو ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سنت کو زندہ کرنے کے لیے جمعے کے دن غسل کرنا بہتر ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کشمیر خان صاحب بڑگام سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. میرا نام ہے نذیر احمد شاہ. جی نذیر صاحب سوال پوچھیے. میری بیوی روز پریشان رہتی ہے. کیوں آپ کی اہلیہ کیوں پریشان رہتی ہیں روز؟ ہاں اس کے لیے کچھ دعا مولانا سلام. پریشان کیوں رہتی ہیں آپ کی اہلیہ؟ وہ اس کا بیٹا بے روزگار ہے نا، اسی لیے. ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا بے روزگار ہے. ہاں ٹھیک ہے. وہ پریشان روز رہتے ہیں، اس کے لیے کچھ دعا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کشمیر سے. جی مولانا صاحب بھائی کی کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ بھائی کو چاہیے کہ دو عمل کر لے، روزی کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اور جو اہلیہ کی طبیعت ناساز رہتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. جی پہلا عمل تو یہ کرنا ہے کہ بعد نماز مغرب کے ایک مرتبہ گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت سارے افراد کریں. سورہ واقعہ 27 سپارے میں جہاں پہ سورہ رحمان مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ واقعہ شروع ہو جاتی ہے 27 سپارے میں. ایک مرتبہ بعد نماز مغرب کے گھر میں پڑھیں. اور دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ بیٹا اگر ان کا خود پڑھ لے یا کوئی پانی پہ دم کر کے پلا دے، ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم
सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये 2 अमल कर ले तो इंशाअल्लाह परेशानियां भी दूर होंगी, कारोबार अल्लाह ताला चला देंगे। जी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। जी मेरा मौलाना साहब से ये सवाल है कि हमारी एक पड़ोसन है, उसकी 4 बेटियां हैं। वो चाहती है कि मेरा इस टाइम मेरा बेटा हो, उसका हमल भी ठहर चुका है, तो उसके लिए उसको क्या तजवीज़ है, वो क्या पढ़े? सवाल फिर से दोहराना चाहेंगे? आपके पड़ोस में? जी जी जी, एक पड़ोसन है, उसको 4 बेटियां हैं जी। तो अभी वो चाहती है कि मेरा बेटा हो, मैं अल्लाह से दुआ मांगना चाहती हूँ, मैं क्या दुआ मांगू? ठीक, क्योंकि हाँ ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब मोहतरम की क्या रहनुमाई फरमाएंगे आप? बेटा अल्लाह की तरफ से आता है और बेटी भी अल्लाह ही की तरफ से आती है। बेशक। और जो भी अल्लाह दे अल्लाह की नियामत समझकर उसको कबूल करना चाहिए बशासत से। लेकिन जाहिर सी बात है इंसानी ख्वाहिशें होती हैं और इंसान के कुछ अरमान भी होते हैं। तो अगर इनको बेटा दरकार है कि अल्लाह हमें बेटा दे, तो उसके लिए मैं इनको 2 अमल बताऊंगा, उसको करें तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, कन्फर्म नहीं है कि ऐसा ही हो जाएगा, ये तो अल्लाह के हाथ में है। जैसे दुआएं मांगी जाती हैं वैसे आप ये दुआ भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो इनको और इनकी अहलिया को सूरे यूसुफ की तिलावत करनी चाहिए। सूरे यूसुफ को इनको भी 1 मरतबा तिलावत करनी, इनकी अहलिया को भी 1 मरतबा तिलावत करनी है रोज़ाना, 1 अमल। और दूसरा अमल ये है कि हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ लिया करें, या बुशरा हाजा गुलाम, या बुशरा हाजा गुलाम, या बुशरा हाजा गुलाम। हर नमाज के बाद 11 बार करें और अल्लाह से दुआ करें, उम्मीद है अल्लाह ताला इनको बेटे से नवाजेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। जी सवाल पूछिए। जी मुझे सवाल पूछना है आपसे कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, मेरे कोई औलाद नहीं है, सब ट्रीटमेंट करा लिया है मैंने, अल्लाह के ऊपर छोड़ा है सब कुछ फैसला। और मैंने सुबह ख्वाब भी देखा था कि औलाद का ख्वाब देखा था सुबह, रात सुबह फजर में, तो उसकी रहनुमाई कर दीजिए जरा और कोई दुआ बता दीजिए। आपने जो है अपना टेस्ट करवाया, टेस्ट नॉर्मल है? जी सब टेस्ट नॉर्मल है, मेरे हस्बैंड के भी टेस्ट नॉर्मल है, मेरे भी टेस्ट नॉर्मल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए बेंगलोर से। जी मौलाना साहब बहन की किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे? 5 साल शादी को हो गए लेकिन कोई अभी औलाद नहीं है और इन दोनों मियाँ बीवी ने टेस्ट करवाए लेकिन टेस्ट अभी नॉर्मल है। बहन को चाहिए कि 40 खजूर ले लें, 40 खजूर ले लें और रोजाना 2 खजूर के ऊपर सूरे कौसर दम करे, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। ये दुआ को 11 मरतबा 2 खजूर पे दम करना है, एक खुद खाएं, एक अपने शौहर को खिलाएं। रोजाना का अमल ये है, 40 दिन करना है इनको। और दूसरा अमल इनको ये करना है कि हर नमाज के बाद तकरीबन 2 तस्बीह ये पढ़ लें अस्तगफार की, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। तो ये 2 अमल करें, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद अल्लाह इनको जो है साहिब औलाद बनाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? बेंगलोर से बोल रहे हैं। जी सवाल पूछिए। हेलो, चेहरे पे नूर आने के लिए अल्लाह नूर समावात थी, वो बोले थे ना, वो एक बार पानी में कैसे लगाना है, पानी में धो के 1 बार ही लगाना है या कितने बार लगाना है, और या बातिल खाना हजम करने के लिए कितने बार पढ़ना है? ठीक है, खाना हजम करने के लिए और चेहरा नूरानी करने के लिए दुआएं जो बताई थी आपको कितनी बार पढ़ना है? मेरा फोन कट मत करना, हम लोग नहीं देख सक रहे आज टीवी, इसलिए थोड़ा ऐसे ही बोल देना। ठीक है, बिना देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब किस तरह से मोहतरमा की रहनुमाई फरमाएंगे? चेहरे पे नूर हो और जो है परेशानियों से निजात के लिए क्या करेंगे?
बहन को इससे गुज़िश्ता हफ्ते ये अमल मैंने बताया था जी कि पानी के ऊपर 21 मरतबा पढ़ ले, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाहु नूरुस समावाति वल, 21 मरतबा पानी के ऊपर दम करें और उसी पानी से अपना चेहरा धुले। और दूसरे जो पेट में तकलीफ थी, खाना नहीं हजम होता था, तो मैंने बताया था खाने के बाद 11 मरतबा पढ़ना है, या बातिनू या बातिनू या बातिनू। ये सीधे हाथ की हथेली के ऊपर दम करना है और हथेली को पेट के ऊपर मल लेना है, तो इंशाल्लाह जो इनको तकलीफ है इसमें अल्लाह इनको शिफा देगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? सूरत से बात कर रहे हैं हम। जी। बाबा पास। जी, हमारी एक भांजी है 11 साल की। जी बस, तो उनको ना सीने पे फुंसी वगैरह हुआ पानी के टाइप। हाँ, तो फुंसियाँ हो गई? 5 साल से फुंसिया हो गई है। तो 5 साल से हुआ है। वो 6 महीने में आते हैं, 6 महीने में चले जाते हैं। अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, डॉक्टर बताए तो भी नहीं हो रहा है। कुछ दुआ और वजीफा होगा तो बता दीजिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सूरत से कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, सवाल आपने सुना, क्या भाई को मशवरा देना चाहेंगे? कोई वजीफा या दुआ वगैरह हो तो बता दें। कुरान मजीद के पहले सिपारे में ये दुआ आती है, मुसल्लमतुल्ला शियत फीहा, मुसल्लमतुल्ला शियत फीहा, मुसल्लमतुल्ला शियत फीहा। इस दुआ को 11 मरतबा पढ़ना है और पानी पे दम करके पी सकते हैं और हाथ पे दम करके जहाँ पे फुंसियाँ वहाँ पे जो है मल भी सकते हैं, तो इसमें इंशाल्लाह इनको काफ़ी आराम मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। जी, मेरे मौलाना साहब से ये सवाल था, क्योंकि मुझे सूरत कैफ के बारे में मुझे मालूमात करनी थी। क्या किसी ने मुझे बताया मालूमात था। हासिल करना चाहती हैं? जी, मैं रोजी तंगी मेरे घर में बहुत ज्यादा है। अल्लाह के शुक्र से मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, जी। कलाम पाक की तिलावत भी करती हूँ, सुबह में यासीन शरीफ भी पढ़ती हूँ, शाम मगरिब के बाद में सूरत वाक़िया भी पढ़ती हूँ। मगर किसी ने मुझे ये बताया कि सूरत कैफ पढ़ने से अल्लाह ताला हर दिन में जो पढ़ेगा घर की नमाज के बाद में, तो अल्लाह ताला 8 दिन की रोजे का इंतजाम कर देंगे। कि ये जायज है? ठीक है। और एक सवाल और अब मौलाना साहब से कह देना है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, कर्जे में बहुत मुश्किल हूँ मैं, और मेरे घर में तंगी बहुत है, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अल्लाह से दुआ मांगते मांगते मैं बहुत ज्यादा मायूस हो चुकी हूँ। मैं बताने मायूस होने की जरूरत नहीं बहन, अभी मौलाना साहब से जवाब ले लेते हैं। मौलाना साहब जो मशवरा और दें, मुझे उस पर अमल करेंगे। एक सवाल और है मेरा, बस मेरे शोहर ऑटो चलाते हैं, उनका काम में दिल लगे और मुझे उसके लिए दुआ खैर बरकत के लिए कोई मुझे वजीफा बताइए। वैसे मैं सारे आप जो बताते हर चीज से मैं अमल करती हूँ, ठीक मेरी है। कॉल नहीं भी लगती तो मैं उस बात का अमल करती हूँ जो मैं पूछना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया 3 सवाल पूछने के लिए। जी मौलाना साहब, किस तरह से मोहतरमा की रहनुमाई फरमाएंगे आप? जी सबसे अव्वल तो बहन ने जैसे कहा कि सूरह कहफ पढ़ना है और हफ्ते भर रोज़ी का इंतज़ाम रहता है, तो जाहिर सी बात है अल्लाह का वादा है, आप यकीन और ईमान के साथ जो है जो सूरतें आप पढ़ रही हैं उसको पढ़ती रहें और जो दुआएं आपको बताई गई हैं वो आप पढ़ती रहें। सूरह वाक़िया आप पढ़ती हैं उसको जारी और सारी रखें। बल्कि मैं तो आपको मशवरा ये दूंगा कि आप जो है इस अमल को जारी और सारी रखिए। देखिए अल्लाह की मदद कभी फ़ौरन आ जाती है, कभी जो है अल्लाह की मदद थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन आती ज़रूर अल्लाह की मदद है। आप नाउम्मीद ना हो, मायूस ना हो। अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीदी, मायूसी ये कुफ्र तक ले जाती है, बल्कि आप जो है इस्तिकामत और सब्र का दामन पकड़ें, तो इससे अल्लाह और खुश होगा। जब आप अमल को जारी और सारी रखेंगी तो इंशाअल्लाह जो है आपके साथ अल्लाह की मदद आएगी। बल्कि मैं आपको एक अमल और बता रहा हूँ, आप उसको भी कर ले तो इंशाअल्लाह ये परेशानियां और दूर हो जाएंगी आपकी। कि आप 11 रोटी ले लीजिए, 11 रोटी ले लीजिए, उसको पका लीजिए या बाजार से ले लीजिए, आधा किलो गुड़, उसकी जो है आपस में चाशनी बना के मलीदा बना ले और उस मलीदे को
तकरीबन 11 पुड़िया कर ले, अब उसको किसी फकीर को आप तकसीम कर दें या कोई बड़े तालाब या बड़ी गोमती के अंदर डाल दें, तो जो अमल आप कर रही हैं उसको जारी व सारी रखें। ये सदक़े वाला अमल है। आप ये सदक़े वाला अमल करेंगी तो इंशाल्लाह जो भी रुकावटें हैं अल्लाह ताला आपकी दूर करेगा और जो है परेशानी अल्लाह आपकी दूर करेगा। फिर से इसको समझ लें, 11 रोटी ले लें, 1 किलो गुड़, उसकी चाशनी बना ले और उसके बाद रोटियां तोड़ के उसका मलीदा बना के बड़े तालाब या गोमती में डाल दें या किसी फकीरों के अंदर तकसीम कर दें। ये सदका है, सदके से तमाम मुसीबतें दूर हो जाती हैं। बाकी इंशाल्लाह आपके हक में दुआ करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी गुलबर्गा कर्नाटक से बात कर रहे हैं। मौलाना से बात करना चाहिए था। जी मौलाना साहब आपकी बात सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। जी हेलो। जी आवाज आ रही, सवाल कीजिए। जी मैं एक 15 दिन पहले उम्रा गया था। जी जाने से पहले मैं वालिद को मिला। जी नहीं जाओ, नहीं तुमसे नहीं मिलना है बोले। फिर 1-2 दिन के बाद फिर मिला, नहीं आप चले जाओ, घर से निकल जाओ बोले। जी मैं उम्रा चले गया। मक्का में मेरे को बशारत में मेरे वालिदा आके मेरे वालिद से मिले। जी फिर उम्रा 15 दिन करके मैं फिर आके वालिद साहब को कुछ आबे जमजम खजूर देना चाहा, फिर और गुस्सा कर दिए। नहीं चले जाओ, आप वापिस चले जाओ, नहीं आना घर पे बोले। तो मैं फिर आ गया और जब से मेरे को क्या है, ख्वाब में आते हैं वालिद भाई सब आते हैं और कुछ हादिसे हुए मेरे से, इस वजह से मैं पूछना चाह रहा था मुल्ताब से। अभी वालिदा आपकी हयात है या वालिद साहब हयात है? नहीं, वालिदा का इंतकाल हुआ रमजान में, 21 रमजान साख रोजे की। वालिद साहब हयात है अभी? हाँ वालिद साहब हयात है, हज करके आए हैं। तो वालिद साहब आपसे नाराज क्यों है? कुछ वजह तो होगी। तो इसकी वजह यही है कि मैं 6-7 प्लाट थे नहीं मंगा में, और कुछ घर है नहीं मंगा में, और कुछ भी नहीं मंगा, कुछ भी डिमांड भी नहीं करा। मैं गवर्नमेंट साहब मेरे को नहीं देते बोले तो मैं ठीक है बोल के कुछ भी नहीं देते बस है। मैं एक हमारे भाई हैं बहुत जरा ये टाइप के हैं जी, उनके भाई बच्चे भी जिंदा टाइप के, दादा टाइप के करतूत कराते हैं। ठीक है उन्हीं को रख लिए और घर भी उनके कब्जे में है। मैं मांग रहा भी नहीं, कुछ बोल रहा भी नहीं, कुछ डिमांड भी नहीं कर रहा मैं जी। तो आपसे आते हैं मेरे को तकलीफ दिखे और कुछ तो कुछ आदेश होते मेरे को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए गुलबर्गा से। ये तो मौलाना हमने एक तरफा बात सुनी है, जिस तरह से इन्होंने अपना सारा माजरा सुनाया है। क्या मशवरा देना चाहेंगे इन भाई साहब को? इनके वालिद साहब इनसे नाराज हैं, इनका ये कहना है कि घर है या जायदाद है उसमें इन्होंने हिस्सा भी नहीं मांगा। हम लोगों ने एक तरफा बात सुनी है, क्या मशवरा देना चाहेंगे ताकि इनके वालिद साहब जो है इनसे राजी हो जाएं? सबसे अव्वल तो भाई को चाहिए कि ये अपने वालिद को मनाने की कोशिश करें, उनके हक में दुआएं करें और उनसे मन्नत समाजत करें। बस मैं इतना ही गुजारिश करूंगा भाई से कि वो कितना भी वालिद साहब गुस्सा हो या गलत सलत बोले, इनको चाहिए कि ये उनके आगे जो है सरे खम तस्लीम करें, यानी अपने आप को पेश करते रहे। कभी उनसे बदकलामी मत करें, बल्कि बाप को जवाब न दें, अपने वालिद से बहस न करें, अपने वालिद को किसी भी बात का जवाब न दें, उनके हक में दुआ करें, उनको समझाने की कोशिश करें। बल्कि इनकी अल्लाह की तरफ से पकड़ नहीं होगी, बल्कि इनको चाहिए हर नमाज के बाद छोटी सी दुआ आती है, उस दुआ को अगर ये पढ़ के अल्लाह के हक में दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह इनके वालिद का दिल इनकी तरफ अल्लाह ताला फेर देंगे। वो दुआ ये है, या रऊफू या जामियू, या रऊफू या जामियू, 11 मरतबा हर नमाज के बाद इसको पढ़ें, फिर वालिद के हक में दुआ करें तो इंशाल्लाह वालिद के दिल में अल्लाह इनकी मोहब्बत डालेगा और आपस में प्यार मोहब्बत हो जाएगा। जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुआ और दवा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। नाजरीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फोन इन प्रोग्राम दुआ और दवा, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मौलाना हारून निजामी साहब, जिनका ताल्लुक दारुल उलूम फरंगी महल लखनऊ से। मौलाना साहब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है, और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम से जोड़ते हैं। देखते हैं कॉलर्स कहाँ से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी। मैं राजस्थान से बात कर रही हूँ। मुझे मौलाना साहब ने बहुत सारी दुआएं बता रखी है, सब पढ़ती हूँ मैं। और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ, और वो हस्बुनल्लाह 313 बार वो भी बता रखी है, वो पढ़ूँ। तवद्दुदु और 3 बार यासीन शरीफ पढ़ूँ, कुरान शरीफ की तिलावत भी करूँ, सब बढ़िया है। पर जो घर का काम अधूरा पड़ा है ये, इसके बारे में तो हमारे इसके नाना के हम 2 बीवियां हैं, मैं छोटी हूँ। तो घर का काम क्या अधूरा पड़ा हुआ है? पूरा काम, बरसात में पानी टपके पलस्तर वलस्तर कुछ भी नहीं हो रहा है। हाउसिंग बोर्ड का है जो, इसकी किस्तें भी बाकी है। जी, तो वजह क्या है? वजह क्या है? वजह ये है कि 2 बीवियां हैं, मैं छोटी हूँ। अच्छा। तो वो मुझे महीने का 8,000 रुपए देके जाते हैं। उसके बाद में मतलब कभी भी उनसे मकान की को या पैसे की को तो कभी ध्यान ही नहीं देते। और तो उन 8,000 में ही मैं सबका भी निकाल दूँ, सब पढ़ दूँ, और कोई परेशानी नहीं है घर में, सब बढ़िया, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। पर बस ये मकान का काम है। और मेरे एक ही लड़की है सिर्फ, इसके 2 बच्चे हैं। ठीक है। वो कभी महीने भर में आते हैं, कभी 15 दिन में, मतलब कभी काम पड़े पैसे देने के लिए। वैसे अगर कोई काम बता दो तो कभी मतलब हाँ नहीं भरते हैं उस काम की। ठीक है, आप जो है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। और मौलाना साहब जो मशवरा दें, जैसा कि आपने कहा सारा सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन घर का काम नहीं हो पा रहा, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, मोहतरमा की किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे आप? बहन को चाहिए कि रोजाना 1 मरतबा सूरे रहमान की तिलावत करे। जी। रोजाना 1 मरतबा सूरे रहमान की तिलावत करें, और उस तिलावत करने के बाद पानी के ऊपर दम करके पूरे घर में उस पानी को छिड़क दें, और थोड़ा सा पानी ये पी भी लिया करें, और उसके बाद अल्लाह से दुआ करें। तो घर में जो रुकावटें हैं वो रुकावटें अल्लाह ताला दूर कर देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी बिहार से बोल रहे हैं, जहाना खातून। हमें जुमा के दिन का दरूद शरीफ समझ में लेकिन नहीं आया, आगे हफ्ते हमें जुमा के दिन का दरूद शरीफ जानना है। जुमा के दिन का दरूद शरीफ? जी जी। तो फिर के पढ़ने के बाद जुमा के 4 बजे जो दरूद शरीफ पढ़ती हैं, उसी को हमको जानना है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, मोहतरमा जो है दुरूद शरीफ नहीं याद कर पा रही हैं, क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे आप? जी जी, गुज़िश्ता जुमे को मैंने दरूद शरीफ की फजीलत बताई थी जी। और मैंने ये बताया था कि एक दरूद शरीफ है, मुख्तसर सा छोटा सा दरूद शरीफ है जो जुमे के दिन पढ़ा जाता है, और वो असर की नमाज के बाद पढ़ा जाता है। जुमे के दिन असर की नमाज के बाद किसी से बात किए हुए उसी हैयत में जो अल्लाह की बंदी, अल्लाह का बंदा 80 मरतबा दरूद शरीफ ये पढ़ेगा, उसके 80 साल के गुनाह मुआफ होंगे और 80 साल की इबादत का सवाब लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह। वो दरूद शरीफ कौन सा है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप तमाम नाजरीन से गुजारिश है उसको याद करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। इसको पढ़ें 80 बार, 80 साल की इबादत का सवाब लिखा जाएगा और 80 साल के गुनाह अल्लाह माफ करेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ भाई। जी सवाल पूछिए। हाँ, सवाल मेरा ये है भाई, हमारे खानदानी बाल झड़ते, बच्चों के बाल झड़ जा रहे, इसके वास्ते मैं मौलाना से 2 दफा पूछा, मगर वो आयत का नंबर नहीं बताए सही। वो नंबर कुरान में मेरे को आयत नहीं मिल रही हो। एक खुद बोले 29वें पारे में है, बोले एक खुद बोले दूसरे पारे में है। 2 खुद 3 वक्त पूछ चुका मैं इस सवाल को, मगर मेरे को सही आयत का नंबर नहीं मिल रहा कुरान में मेरे को। ठीक है, तो मौलाना साहब जो बताते हो तो उसको याद भी कर लीजिए, मोबाइल में जो है नोट कर लीजिए।
अगर नंबर बताए तो बेहतर रहता है, शुक्रिया हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मौलाना साहब, ये जो है आयत का नंबर जानना चाह रहे हैं। खानदानी शिकायत है बाल झड़ने की, इनके बच्चों के भी बाल झड़ रहे हैं, तो जो आयत बताई थी वो याद करना चाह रहे हैं, लेकिन ये पूछना चाह रहे हैं कि वो आयत किस पारे में है, कौन सी सूरह में, वो बता दें। जी। जो भी तेल ये इस्तेमाल करते हैं वो तेल के ऊपर इनको एक तस्बीह दम कर ले, या मतीनू या मतीनू या मतीनू, एक तस्बीह यानी 101 बार उसी तेल के ऊपर दम करके सर में लगाएं तो इंशाल्लाह बाल गिरना दूर हो जाएंगे और बालों के अंदर मजबूती भी आएगी। बल्कि बालों का गिरना ये पेट की खराबी से होता है। अगर इनके अंदर कब्जियत रहती है या पेट सही नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है, उससे भी बालों का गिरना ताल्लुक रखता है। तो इस तरफ भी अपनी जहन को दौड़ाएं और कि इनको चाहिए कि अपने पेट को मतलब हाजमा इनका सही होना चाहिए, और उसके लिए ये दुआएं भी पढ़ें और दवा भी पढ़ें। पेट सही रहेगा तो बाल इनके नहीं गिरेंगे। बल्कि ये तो मैंने एक अस्माउल हुस्ना का एक अमल बताया है, या मतीनू, इतना तो याद ही कर लेंगे, या मतीनू या मतीनू या मतीनू, 101 बार पढ़ें तेल के ऊपर, वही तेल मालिश करें तो इंशाल्लाह गिरना बंद हो जाएंगे बाल इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये चाह रहे हैं कि वो कोई आयत वगैरह हो तो बता दें ताकि उसको याद कर लें। जी। कुरान मजीद के अंदर ये दुआ भी आती है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। ये 30 सिपारा यानी 30 सिपारा जो आखिरी सिपारा जिसे बोलते हैं, वहां पे छोटी सी दुआ है, कॉमन दुआ है, सूरत है, सभी को याद है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। उस दुआ को भी ये तेल के ऊपर और पानी के ऊपर दम करके भी सकते, उससे भी बालों का गिरना जो है वो बंद हो जाता है। जी। तो मोहतरम, आपने सुना मौलाना साहब ने जो है सूरह ज़िलज़ाल के बारे में जिक्र किया है, कुरान पाक के 3 पारे में है। आप जो है इसको पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं, और जैसा कि मौलाना साहब ने बोला है कि तेल या पानी पे पढ़कर फूंक के और बच्चों को बोलिए कि वो इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम बम्बई से बोल रहे हैं मौलाना साहब। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, फिर सवाल कीजिए अपना। हाँ, हमारा सवाल है मौलाना साहब, हमारा गाँव का घर है जो देखना चाहती है, हमने देखना चाहते हैं। हम आपकी आवाज़ सुने या जो टीवी में आवाज़ आ रही वो आवाज़ सुने, बताइए। नहीं आवाज़ सुने। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, फिर आप बात कीजिए। बंद कर दिया हम। जी हाँ, सवाल कीजिए। हाँ, हमारी गाँव का घर हम देखना नहीं चाहती, हमारी बहन देखना चाहती है, तो बोलती नहीं तो हमको 4 लाख रुपया दो, कहीं से भी ला कर, हमारे पास है नहीं। घर हमारे अब्बा के नाम पर है, हम लोग तीनों के नाम पे है जी। अब वो पेपर भी लेके जाना चाहती है। तीनों के नाम पर है? तीनों मतलब बहन है, भाई के नाम पर? अब्बा का इंतकाल हो गया है जी। सबका हिस्सा हो गया, खाली हमारे 2 बहन का है अब्बा के नाम पे। तो बहन बोलती हमको पैसा दे या तो घर बेचो। जी। और आप घर बेचना नहीं चाह रही हैं? हम घर बेचना नहीं चाहते जी। तो आप उनको रुपए फिर क्यों नहीं दे पा रही हैं? हाँ, हम नहीं दे सकते रुपये, 4 लाख मांग रहे हैं हमसे। जी। तो आपको शरीयत के हिसाब से चलना पड़ेगा। मौलाना साहब से आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। मौलाना साहब जो बात बताएं, जो आपको मशवरा दें, उस पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। जी। मौलाना साहब किस तरह से इनकी रहनुमाई फरमाएंगे? इन्होंने जैसा कि कहा कि हम पैसे नहीं देना चाह रहे हैं और घर भी नहीं बेच सकते हैं, तो क्या इनको आप बताएंगे, क्या फैसला है शरीयत के हिसाब से, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि ये वरासत का मामला है जी। अब इसमें किसका हक बनता है, किसका हक नहीं बनता या कितना बनता है, तो बहन को चाहिए कि ये अपने घर के अफराद को या अपने किसी लोकल मुफ्ती साहब को, आलिम साहब को बुला के उनसे मशवरा करे कि इसका वरासत में कैसे इसको तकसीम किया जाएगा, किसका कितना हिस्सा बनता है, किसका नहीं बनता है। एक चीज़ तो ये हुई, और दूसरे इनको चाहिए कि ये हर नमाज के बाद जो है ये दुआ पढ़कर अल्लाह से दुआ करें कि इस मामले का हल निकल आए। उसके लिए दुआ करें कि इस मामले का कोई ऐसा हल निकल आए, इनके हक में आ जाए या बहन के हक में चला जाए। उसके लिए चाहिए कि इनको हर नमाज के बाद 7 मरतबा दरूद शरीफ और 7 मरतबा अलहम्दु शरीफ पढ़ के अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस मामले का हल निकाल दीजिए, तो अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो हेलो जी, आवाज आ रही, कहाँ से बात करें मोहतरमा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो सलाम। अस्सलाम वालेकुम। MP बड़नागर से बोल रही हूँ। जी सवाल कीजिए। बड़नागर टीवी की आवाज बंद कीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए अपना। बड़नागर ओ सर बोल रही हूँ बड़नागर से। जी 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 जी, सवाल कीजिए अब। मेरा लड़का है 18 साल का, कुछ मतलब पढ़ाई भी उसने नहीं करी और है ना वो कुछ काम भी नहीं सीखने जा रहा है। वो बच्चे घर में कहना भी नहीं सुनते हैं। जी, ना पढ़ाई कर रहा है ना काम पर जा रहा है। नहीं करी, पढ़ी भी 10वीं पढ़कर छोड़ दी और कुछ कहना भी नहीं सुनता और ना कुछ काम करने जा रहा। ठीक जी, और बच्चे भी कहना दूसरे में सुनते हैं। सब नमाज घर में हम सब पढ़ते हैं ठीक फिर भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मौलाना साहब, क्या रहनुमाई फरमाएंगे आप मोहतरमा ने जो सवाल किया है? बहन को चाहिए कि कुरान मजीद की ये दुआ है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। 101 मरतबा इस दुआ को पढ़ के पानी पे दम करें और उसी पानी से इनको खाना बनाना है। उसी पानी से इनको खाना बनाना है, यानी खाना बनाने के लिए जो पानी इस्तेमाल करती हैं उसमें ये पानी डाल दें और सारे बच्चे इनके खाएंगे तो इंशाल्लाह फरमाबरदार भी बन जाएंगे और जो है पढ़ाई में उनका मन भी लगेगा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। 23 सिपारा जहां पे निस्फ होता है वहां पे ये दुआ लिखी हुई है। ये अमल करें तो इंशाल्लाह इनके बेटे फरमाबरदार हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम बम्बई से हो रहे हैं, शमीम नाम है हमारा। आपको, आपकी पूरी टीम को, मौलाना को, सबको हमारा बहुत बहुत सलाम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हमेशा हमारा फोन भी लग जाता है, बहुत सी हमारी दुआएं कबूल भी हुई, हमारे काम भी पूरा हुआ। वालेकुम अभी अस्सलाम। परसों के हमने बच्चे के लिए बोले थे खड़ा के लिए, वो भी इंशाल्लाह अभी वो काम पूरा ही होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना से हम पूछना है कि मेरे ना पेट में ना तकलीफ रहती है जी और ये 2 साल से हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, हमको बोलते कोई जादू करा हुआ है, तो नमाज के वक्त भी एकदम परेशान हो जाती हूँ, एकदम हाँ बुरे बुरे ख्यालात आने लगते हैं, ख्वाब में भी बुरा दिखता है। तो जो मौलाना सबका जो बोलते हैं रोटी का डालना, तो वो भी हम भी कर सकते हैं कि उसके बारे में पूछना था, और कुछ है तो मौलाना हमको बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, एक चीज और बता दीजिए कि आप पे जादू क्या हुआ, ये आपको किसने बताया? ये कहीं भी जाते तो यही बोलते हैं, कितना भी हम लोग दवाई कर रहे, इलाज कर रहे, पेट की तकलीफ मेरी सही होती ही नहीं है, इतनी पढ़ाई करती ये हूँ। गलत फहमी में बिल्कुल आप मुब्तला ना हो। मौलाना साहब ने जो दुआएं बताई उससे आपको फायदा भी हो रहा है, इस्तिखारे के बारे में बताया उससे का भी पेट की तकलीफ में पेट की तकलीफ भी इंशाल्लाह सही हो जाएगी। हाँ, लेकिन उसके लिए कुछ हाँ, अमल आपको करना पड़ेगा, खाने में हाँ, पीने में आपको जो है उसमें चेंजेस करना पड़ेगा मौलाना साहब से। करती हूँ, इतना एहतियात करती हूँ, खाने पीने में मेरा बहुत कम गिज़ा, बहुत ही एहतियात करती हूँ जी। तो फिर भी पेट का मेरे तकलीफ नहीं है। वही मौलाना से पूछना है कि कुछ सब्जी के बारे में जो बोल रहे रोटी का, जी। वो हम भी करेंगे तो ठीक होएगा, कि उसके बारे में ठीक पूछना। है। दुआ में याद रखिए, हमारे बच्चों लोग के लिए दुआ कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा मुंबई से कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, जो दुआएं आपने बताई थी मोहतरमा को फायदा हो रहा है, लेकिन इनकी ये शिकायत है, इनको ये शक है कि इन पे किसी ने जादू टोना कर दिया है, पेट में इनके दर्द रहता है, तकलीफ है, तो कोई वजीफा या दुआ वगैरह हो वो भी बता दे ताकि इनकी पेट की तकलीफ खत्म हो जाए। जी, पहला सवाल जो बहन ने किया कि वो रोटी वाला सदक़े वाला अमल जो है ये कर सकती हैं, तो उसमें कोई तकल्लुफ की बात नहीं है, ये भी कर सकती हैं, इंशाल्लाह इनको फ़ायदा होगा। और दूसरा सवाल जो बहन का है, अब ये कन्फर्म है या इनको शक है, ये तो वल्लाहु आलम, बल्कि इनको अगर शक है किसी ने इनके कुछ कर धर दिया है तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि सूरह बकरा का पहला रुकू, आखिरी रुकू, आयतल कुर्सी, चारों कुल,
सूरह बकरा का पहला रुकू, आखिरी रुकू, आयतल कुर्सी, चारों कुल, ये पानी पे दम करके सुबह शाम 11 दिन पी ले तो अगर कुछ है भी इनके ऊपर तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है सब इनका जो है मामला ख़त्म हो जाएगा, करधर का जो मामला है। और तीसरा सवाल जो बहन ने किया, इनके पेट में तकलीफ रहती है तो इनको चाहिए कि जब खाना इनके सामने लग जाए तो खाने के ऊपर ये दम कर ले, कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा व कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। खाने के ऊपर इस दुआ को 11 मरतबा पढ़ के दम कर ले, फिर वो खाना खाएं तो इंशाअल्लाह जो है वो इनके पेट में शिफा बनेगा। और बल्कि इनको चाहिए कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ें, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ें, इससे भी इनकी तमाम परेशानियां दिक्कतें दूर होंगी और पेट की तकलीफ भी अल्लाह दूर करेगा। जी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम सर। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर हम लोग बीजापुर पुरी से बात कर रहे हैं सर। बीजापुर से? हाँ बीजापुर पुरी सर। जी जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, हमारा बीवी तो है ना सर, कम से कम हम लोग 4-5 साल से दिखा रहे सर अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। जो उसको पीठ में है ना सर, पीठ में दर्द होता है, फिर कमर में और गुड़गे में दर्द होता है सर। बोलते हैं कि डॉक्टर एमआरआई निकालो, एमआरआई भी निकालो सर, सब कुछ स्कैनिंग यूनिंग सब हुआ, फिर भी कुछ भी ये नहीं सर। दवा गोली भी दे रहे हैं, वो भी लिया, उसको कुछ भी नहीं हो रहा सर। क्या करना बोले सर? रिपोर्ट सारी नॉर्मल है? रिपोर्ट सब उसमें बता रहे सर, ये थायराइड है कर सर, थायराइड। जी थायराइड? हाँ थायराइड है कर बोले, हम लोग गोली दवा दिया सर, उसके बाद और ठीक हुआ, और स्टार्ट हुआ सर, और देखा और थायराइड और गोली का और स्टार्ट है सर, फिर भी दवा गोली ले रहे सर, वो तबियत बर्बाद नहीं रहता है सर। 5 साल से शिकायत है? हाँ सर, ये बहुत ही है सर, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा सर। क्या करना बोली सर इसके लिए? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब आपको जो है मशवरा देंगे, उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर आपकी अहलिया को फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, जो भाई ने सवाल किया है किस तरह से इनकी रहनुमाई फरमाएंगे, आप क्या बताना चाहेंगे इनको? भाई कोई सवाल को जरा वाज़ेह कर दिए, पूरी बात समझ में नहीं आई। भाई इनकी बीवी के पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, इन्होंने एमआरआई करवाया, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, 5 साल से ये शिकायत है और ये जो है थायराइड की भी शिकायत है। दवा ये इनकी बीवी लेती है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, परेशान है, क्या करेंगे? जी हदीस मुबारका के अंदर एक दुआ आती है, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी। ये दुआ थायराइड के लिए भी काफ़ी मुफीद है और जो बदन के अंदर कैसी भी तकलीफ होगी, बीमारी से रिलेटेड होगी, उसमें शिफा मिलेगा। इनको चाहिए कि सुबह और शाम 40 मरतबा ये दुआ पढ़ें, सुबह 40 मरतबा पढ़ें, शाम को 40 मरतबा पढ़ें। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, पानी भी दम करके पिए, अल्लाह ताला इनकी बीमारी को दूर करेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरत। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम बोल रहे हैं छतरपुर मध्य प्रदेश से। छतरपुर मध्य प्रदेश से। जी सवाल कीजिए। हमारा एक सवाल ये है कि जब अपन नमाज पढ़ते हैं तो हम किस स्टेप पर हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना जरूरी है नमाज के दौरान? जी मतलब शुरुआत में तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहते ही हैं जी जी, जब नमाज नियत मानते हैं। जी हाँ जी, कहाँ किस स्टेप में अपन को जो है उसकी जो है वहाँ बिस्मिल्लाह कहना जरूरी है। और एक और सवाल है हमारा जी, कभी नमाज पढ़ने में या दुआ मांगने में कभी कभी दूसरे ख्यालात आ जाते हैं, कोई ऐसी मुख्तसर दुआ बता दीजिए, कभी दिन में भी आ जाते हैं जी, तो वो ना आए, कोई छोटी सी कभी चलते फिरते पढ़ते रहे वो दुआ थोड़ी मुख्तसर इससे दुआ बता दीजिए आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कभी ये हो जाता है कि ईमान भी में खलल पैदा हो जाती है, है जी, ऐसी ख्यालात आ जाते हैं वो खराब है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, भाई ने 2 सवालात किए हैं, क्या बताना चाहेंगे? भाई को नमाज के अंदर बिस्मिल्लाह सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है,
जी। भाई को नमाज में बिस्मिल्लाह सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। जी। एक मरतबा जब ये नियत बांधने का इरादा करेंगे फिर बिस्मिल्लाह कर लें कि दिल में कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं नमाज वाला अमल शुरू करने जा रहा हूं। एक तो ये हो गया। दूसरे, नियत बांधने के बाद जब ये सना पढ़ेंगे और सना पढ़ने के बाद जो है औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह दोनों इनको करना है शुरू में। और उसके बाद जब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के बाद जब कोई सूरत शुरू करेंगे, जो इनको सूरत पढ़नी वो सूरत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। बस ये 3 टाइम बिस्मिल्लाह करना है। उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ने में और अत्तहियात पढ़ने में इनको बिस्मिल्लाह नहीं करना है। जब नियत बांधने का इरादा करें उस वक्त बिस्मिल्लाह कर लें कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं काम शुरू करने जा रहा हूं, नमाज वाला अमल। और दूसरे, सूरह फातिहा के शुरू करने से पहले, और तीसरे, कोई सूरत शुरू करेंगे उससे पहले बिस्मिल्लाह करना है। बस एक चीज। दूसरा सवाल जो भाई ने किया कि ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं जी, तो ख्यालात और वसवसे ये तो आना जरूरी है, इससे आप नहीं बच सकते हैं। ख्यालात जरूर आएंगे, वसवसे जरूर आएंगे, क्योंकि आपके साथ में शैतान भी लगा हुआ है। अब आपका काम ये है कि उन ख्यालात को, उन वसवसों को जमाया न जाए, बल्कि जैसे वो ख्यालात आए फौरन उसको डिलीट कर दिए, उसको नजरअंदाज कर दिए और अल्लाह की तरफ ध्यान कर लीजिए। तो उसमें नमाज में कोई खलल नहीं पड़ना है। अब अगर ज्यादा वसवसे आते हैं, ज्यादा ख्यालात आते हैं, तो नियत बांधने से पहले इनको चाहिए कि 3 मरतबा पढ़ लें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और दाहिने कंधे की तरफ फूंक दें। फिर 3 बार पढ़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बाएं कंधे की तरफ फूंक दें। तो इससे इंशाअल्लाह वसवसे इनके कम आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पुणे से बात कर रही आफरीन। जी, सवाल पूछिए। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे शोहर में बहुत परेशान है, बहुत गंदी गंदी गालियां देते। मेरे को 4 लड़कियां हैं और 2 लड़कियां मेरी बड़ी है, अभी जवान है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, इतनी गंदी गंदी गालियां, और शक, शायद उनके दिमाग में कुछ शक भी है। उसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। एक दुआ, कुछ दुआ है वो बताओ। और इतने गंदे गंदे बातें गालियां देते बच्चों के सामने कि उसके लिए मेरे को अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपका रवैया उनके साथ कैसा रहता है? मेरा रवैया बहुत अच्छा है। मैं हर एक खिदमत करती है। आज उनको 25 साल से पैर पर सोलह से मैं सब उसकी खिदमत करती, डब्बे से, हर चीज से। जी, बिल्कुल। देखिए, आपका अगर अमल सही है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मौलाना साहब से जवाब लेते हैं। मौलाना साहब, जो और आपको मैं इतना मतलब कितनी वो अभी बच्चों के सामने है ना, बहुत बुरा लगता। जी जी। और इसके पहले मैंने सवाल करी थी बच्चों के लिए, वो स्कूल को नहीं जा रहे, वो दोनों अभी भी स्कूल को नहीं जा रहे। मौलाना ने आलम नशरा का सूरह 11 और तबा और तेल पर छाती पर लगाने के लिए बोले थे। तो वो भी कितने दिन पढ़ना है और कब तक वो अमल करना है, ठीक है, वो भी पूछती। और मैं, और घर में तो इतनी पैसों की तंगी है, बिना वजह की किरकिरी है, मतलब शौहर की चाहे बाकी किसकी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, समझ गया मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मौलाना साहब, क्या रहनुमाई फरमाएंगे आप, किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे आप? जी, बहन को चाहिए कि अपने शौहर को पानी पे दम करके पिलाएं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कि इस दुआ को 21 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पिलाएं। और हर नमाज के बाद ये दुआ 21 बार पढ़ के रब्बी हबली मिनस सालिहीन उनके हक में दुआ भी करें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इनके शौहर जो है फरमा बरदार बन जाएंगे और उनकी जो लैंग्वेज है और उनकी जो उनके जो बात करने का तरीका, उसमें इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। और दूसरा सवाल जो बहन ने किया कि इससे पहले भी मैंने बताया था इन्हें कि सूरह अलम नशरा बच्चों के ऊपर दम करके पानी पे पिलाएं और तेल पे दम करके लगाएं। तो असल में और जल्दबाजी ना करें। नाजरीन से मैं गुजारिश बार बार करता हूं कि देखिए, डॉक्टर के पास आप जाती हैं, एक बार आप गई तो एक बार में फायदा नहीं होता, फिर 2 बार आ जाती हैं, फिर 3 बार आ जाती हैं, बाज़ मरतबा तो जिंदगी के लिए दायमी यानी हमेशा लाइफ जिंदगी दवा खाती रहती है लेकिन कभी पीछे नहीं हटती। ऐसे दुआओं का मामला होता है कि आप उसको जारी और सारी रखिए, रेगुलर उसको पढ़ते रहिए और जब तक आपका वो काम ना हो जाए। तो जो अमल बताया गया है उसको जारी और सारी रखें। हर अमल के अंदर असर है, तासीर है, कभी जल्दी कभी देर में होती है, उसी तरीके से उसको कंटिन्यू रखें, उसको रेगुलर पढ़ती रहें तो इंशाल्लाह इनको फायदा नजर आएगा। जी,
بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، لکھنؤ کی اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام دعا اور دوا۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔